Come in, please. Come in. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Take Have your a seat. Thank you. sir. Comfortable? Shall we begin? Yes. अपने बारे में हमें कुछ बताइए, लेकिन अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील मत करिएगा। मैम मैंने 2024 में Do you want to drink some water before you start? No. Okay. Go ahead. मैंने 2024 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। I have been an active participant in co-curricular activities like organizing events and volunteering for social services. So, okay. What kind of social services? I was part of our society's clubs like yoga society. कहाँ के societies clubs? Our colleges. अच्छा कॉलेज के. Okay. अच्छा ठीक है. हाँ. So we used to organize funds, clothes donation drives, blood donation drives, and those services. I was a part of those clubs. Okay. And my interests include mobile photography, debating, public speaking, and watching movies. Watching movies, right? Debating में interest कब से है आपको? मैम स्कूल के टाइम से ही है, but in those times limited opportunities थे. But since my college was in Delhi, तो वहाँ पे opportunities कुछ ज़्यादा available हैं, and उनके कारण मुझे debating में दिलचस्पी बढ़ा. Debating और eloquence में कोई difference है? Yes ma'am. क्या difference? Debating में there are two sides, pro और con होता है. जिसमें हम pro वाले जो होते हैं वो favor में topic के बात करते हैं and against में con वाले. But elocution में there is a recitation. So आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे eloquently मतलब एक अच्छे तरीके से बोलते हैं. For example, poems. Okay. That is the basic difference. That's the basic difference between the two. Movies देखने में interest है आपका? Yes. What was the last film that you saw? I'm धुरंधर. धुरंधर आपने देखी? अच्छा. और what is on your bucket list? Bucket list is Avengers Doomsday, which will be releasing in December 2026. Okay, alright. मुझे ये बताइए कि जब आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आपका रिजल्ट भी मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छा था, तो आपने सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल पिक क्यों किया? मैम मैं एक यूपीएससी का भी एस्पिरेंट हूँ. So in that, my option was sociology. Since I had already prepared for it in my last year in my college, and BPSC में qualifying subject है sociology, and उसके लिए मुझे वो help मिल जाता. So I did not need to study another subject. तो वो easily preparable था मेरे लिए. So I chose sociology. अच्छा, ठीक है. बिहार परिवहन सेवा is your first preference. Right. Why? Ma'am, since किस लेवल का पद है ये? level 7. लेवल 7. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दो लेवल 7 के पद को वरीयता दी है ओवर लेवल 9 पद. आर यू सीरियस इन योर कैडर सिलेक्शन या आपने बस रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं कैडर्स? Ma'am, I had seriously chosen all those. Then tell me why would somebody prefer to not go into a level 9 service and prefer to go into prefer two level 7 services back to back? मतलब क्या आपका मोटिवेशन है, क्या बताया गया है आपको इसके बारे में? Ma'am, since my age was not eligible, I was 21 years at the time of application of my. अच्छा, okay, I did not, हाँ, I did not know that. ठीक है. So that is why you chose. So are you still not eligible for Bihar Administrative Service and not eligible for police service? I am eligible for police services. But you're not interested. I'm not interested, particularly in those police. Okay, but you are eligible for DTO, ADTO and MEO and APO के लिए भी आप eligible हैं. ठीक है. APO क्या करते हैं exactly, उनके काम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? Ma'am, in depth तो नहीं पता अभी, but it's related to the assistant planning. So all the planning of the like sewages, roads. No. I'm talking about planning. I'm not talking about Nagar कार्यपालक. So in planning the policy are prepared. So you don't know, you don't understand. तो मुझे बस आप ये बताइए कि आपने political science भी पढ़ा, आपने economics भी पढ़ा, which is the perfect combination when you want to enter administration. तो planning का क्या use होता है किसी भी सरकार के लिए? Administration में planning क्या role निभाता है? मैम प्लानिंग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके तहत अगर एक स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली सारे वर्क्स एलोकेट हो सकते हैं. सो एलोकेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग एक स्मूथ तरीके से जा सकता है. एंड सिंस प्लानिंग हो चुका है तो वी आल्सो हैव टारगेट्स
तो उस आउटकम्स को अचीव करने के लिए द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अपॉन, तो प्लानिंग का वो बेसिक। इकोनॉमिक्स की अच्छी पढ़ाई की है आपने। जी। आपके घर में एक बजट बनता होगा हर महीने का, और सरकार भी एक बजट बनाती है हर साल का, फाइनेंशियल ईयर का, राइट? आपके घर के बजट में और सरकार के बजट में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये होगा कि सरकार जो बजट बनाती है वो एलोकेट करती है टुवर्ड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो उनका जितने उन्हें ग्रांट्स की जरूरत रहती है उस हिसाब से उन डिपार्टमेंट्स को ग्रांट्स दी जाता है। पर मेरे घर में, हमारे घर में जो बजट तैयार होती है वो इस तरीके से होती है कि हम किस कार्य के लिए, किसी एक टास्क के लिए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में अगर हमें कितना खर्च करना, तो और कोई बड़ा डिफरेंस? हम बड़ा डिफरेंस देंगे। समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा आपने। मुझे बताएं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं as far as I can recall, वो ये बताता है कि कैसे एक समाज में जितने मासेस हैं, द मल्टीट्यूड ऑफ द पीपल, वो कैसे रूल किए जाते हैं बाय अ वेरी स्मॉल। Are you sure or you're guessing? Sorry, I'm not able to read. नियो कैपिटलिज्म के बारे में सुना आपने? Yes, ma'am. क्या होता है? रिसेंट टाइम्स में द कैपिटलिज्म का एक फॉर्म चेंज होते आ रहा है, जैसे नियो कैपिटलिज्म थ्योरी के। A proponent who has said this, कोई एक्सपोनेंट या कोई प्रोपोनेंट है इसके? I'm not able to recall. You're not able to recall. सर कुछ पूछना चाहेंगे? अरस्तु के बारे में आप जानते हैं? एरिस्टोटल, यस, सुना है नाम? जी सर। किसके गुरु थे वो? अलेक्जेंडर के थे। जी। विश्व विजेता के रूप में उनको याद किया जाता है। उन्होंने एक भाषण कला को, अलेक्जेंडर को जब सिखाते हैं तो 3 टर्म का यूज करते हैं, इथोस, पैथोस एंड लोगोस। कभी सुना आपने? जी सर। क्या है ये? सर, उन्होंने 3 तरीके से समाज के लोगों को बांटा था उनके क्षमता के अनुसार, इथोस, पैथोस एंड लोगोस, जिसमें इथोस आता है आपके विजडम को दर्शाता है, जिन लोगों में विजडम है उन्हें उस कैटेगरी में डाला गया। पैथोस में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इट वाज अबाउट कि आप में फाइटिंग कैपेबिलिटी, वॉरियर कैपेबिलिटी है या नहीं। एंड दिस लोगोस में था द कॉमन मासेस जो बिजनेस वगैरह या बाकी एक्टिविटीज में काम कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर को वो क्या सिखाते हैं कि बोलते समय कैसे आपको बोलना है? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। खैर, आपने जो डिफिनेशन दिया उसको भी आपको रिवर्क करना है उस पर। आप कहें कि टीम वर्क आपने काफी किया है, मतलब कि कई सारा ब्लड डोनेशन ये सब है, ये बेसिकली टीम वर्क है। तो उसमें आपकी भूमिका क्या रही है, मतलब कि एज ए सहायक या टीम लीडर के रूप में रही है? सर, मैंने कॉलेज के टाइम्स में अपने क्लब्स को हेड भी किया है। तो टीम लीडर की भूमिका टीम लीडर की भूमिका रही है। टीम की खासियत कैसे होती है, कैसे किसी टीम को यूनाइट रखा जाए, और एक टीम है उसकी क्या डिफिनेशन होती है? सर, मेरे आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, आप मतलब जिस भी पोस्ट पे जाएंगे, अधिकारी का सारा पोस्ट है, उसमें आपको टीम के साथ काम करना, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी हेडिंग दैट टीम। तो पहले आपको ये टीम समझना होगा कि व्हाट इज टीम, बताइए। सर, मेरे अकॉर्डिंग जो टीम का डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि एक कॉमन गोल के प्रति कुछ मेंबर्स कार्यरत हैं, काम करने के लिए तत्पर हैं, एक कॉमन गोल माइंड में रखते हुए। ठीक है, कॉमन गोल तो यहाँ भी हम लोग का एक है। क्या हम लोग एक टीम के पार्ट हैं? नहीं सर, गोल तो एक ही है, जिस गोल के लिए हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा और डिफिनेशन और होगा तो और चीजें क्लियर होंगी, है ना? ओके, मोबाइल फोटोग्राफी का आपने शौक लिया है। मोबाइल फोटोग्राफी की क्या मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं? सर, मेरिट जो मेरे लिए सबसे बड़ा मोबाइल फोटोग्राफी में ये है कि इससे पॉइंट एंड शूट का कैपेबिलिटी मुझे मिलता है। इसका मतलब है मैं कहीं भी किसी भी मोमेंट पे तुरंत अपने मोबाइल फोन को निकालकर उस मोमेंट को कैप्चर कर सकता हूँ। ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट। डीमेरिट मेरे लिए ये होगा कि ये एज कंपेयर टू अदर कैमरास जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, DSLRs वगैरह, उनके कंपैरिजन में इसकी जो क्वालिटी आएगी फोटो की वो थोड़ी सी कम आएगी।
ओके, ये डिमेरिट्स हैं। जी मोबाइल फोटोग्राफी में आईएसओ वगैरह कुछ यूज होता है टर्म, जी सर। क्या है ये आईएसओ? सर आईएसओ लाइट कैप्चर का एक फीचर है। मुझे इसके बारे में इन डेप्थ में अभी नॉलेज याद नहीं आ रहा। शटर स्पीड, शटर स्पीड होती है सर। क्या है ये? जो कैमरा का जो हमारा शटर होता है जिसके कारण कैप्चर होती है फोटो एक, वो जितनी देर से शटर स्पीड उसकी स्पीड जितनी स्लो रहेगी वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसकी शटर स्पीड ज्यादा तेज होगी तो वो लाइट कम कैप्चर। मोबाइल फोटोग्राफी में ये सब है फंक्शन? कैमरा, एक पर्टिकुलर कैमरा में ये सारी चीज अवेलेबल होते हैं। ओके। और अगर हम बात करें कि आपके जो नेक्स्ट है वॉचिंग मूवी, किस तरह की फिल्म देखते हैं? सर मैं जनरली सारे तरीके के मूवीज पसंद करता हूँ देखना, बट अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो ऐसे मूवीज जो रियल इवेंट्स पे बेस्ड हो और समाज को कोई शिक्षा देना चाहे। बिहार के पृष्ठभूमि पे जिस तरह के फिल्में आती हैं या आती रही हैं, वो किस रूप में बिहार को प्रोजेक्ट करती है? सर इनके एग्जांपल्स होंगे गंगा जल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म्स, जो बिहार के उस टाइम पीरियड को दिखाते हैं जहाँ पे जंगल राज कोट करना चाहूंगा, जहाँ पे वैसे परिस्थितियों को दर्शाया गया है, जहाँ क्राइम्स ज्यादा हैं, पॉलिटिसाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन, ये सारे तत्व मौजूद हैं। तो ठीक ही तो है, बिहार ऐसा ही तो है, नहीं? सर कुछ हद तक कह सकते हैं कि सही है, पर एक स्टीरियोटाइप बना देना वो गलत होगा। तो क्या रियल इमेज है बिहार की आपके अनुसार? सर रियल इमेज इतना आसान नहीं हुआ कि एक 2 से 2.5 घंटे की मूवीज में डाल सके। तो मेरे तरफ से यह रियल इमेज होगा कि भले वो दिखा दें कि जहां तक जो एक्चुअल डेटा है उन फैक्ट्स को लेकर, पर क्योंकि आप डिबेट करना पसंद करते हैं, जी तो दोनों पक्षों की जानकारी आपको है, तो बताइए फिर आपसे दोनों पक्ष उसमें रहने मूवी में क्यों इतनी नेगेटिविटी दिखाया जाता है बिहार का? आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, बिहार की आबोहवा में सांस ले रहे हैं, और जो मूवी में दिखाता है तो वजह क्या है? क्या उन लोगों को और कहीं नहीं मिलता है? सर जैसा मैंने कहा, ये स्टीरियोटाइप बन गया है बिहार को लेकर। जो पीरियड पहले था उसके अकॉर्डिंग लोग अब बिहार को उसी तरीके से जानते हैं, एक स्टीरियोटाइप उनके दिमाग में बन चुका है। तो अभी टाइम तो ये होना चाहिए कि उन्हें जो अभी इमर्जिंग पोटेंशियल है बिहार में उसे दिखाना चाहिए। वी आर द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द स्टेट इन इंडिया। तो अगर वो सब एंगल्स को भी दिखाया जाए, पिक्चराइजेशन उस पर भी किया जाए, तो एक जो गलत इमेज बना हुआ है उसको वी कुड टैकल। 4C आपने सुना है? 4C का कंसेप्ट क्या होता है कभी? जो मीडिया में बिकती है 4C, क्रिकेट, क्राइम, कॉमेडी, याद नहीं ध्यान दिया, खैर ठीक है। और तो सब ठीक है सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी। मूवी देखते हैं आप, तो ये होता है कि भारत में मूवीज को रेगुलेट करने के लिए क्या गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है? सर भारत में एक सेंसर बोर्ड है जो रेगुलेट करती है मूवीज को। उनके तहत मूवीज में अगर कुछ भी आपत्तिजनक रहता है तो उन्हें वो सेंसर करके हटा देती है और बाकी फिल्म रिलीज की जाती है। कोई इंस्टीट्यूट भी है इसके लिए? सर जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ फिल्म बोर्ड वगैरह भी हैं, बट मुझे उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज अभी नहीं। ये इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, बोर्ड ही नहीं पूछ रहे। इंस्टीट्यूट एज इन स्टडी इंस्टीट्यूट नो सर, याद नहीं आ रहा। ठीक है, डिबेट करते हैं आप। डिबेट में आर्गुमेंट करना जितना महत्वपूर्ण होता है, जवाब देना जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सुनना। तो सुनने के कुछ प्रकार बताए गए हैं जानकार लोगों के द्वारा, आप अवगत हैं इस चीज से? कितने प्रकार से हम सुनते हैं? लिसनिंग के टाइप्स नहीं पता है? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? सर ब्लू इकोनॉमी उस इकोनॉमी के फील्ड को बोला जाता है जहां पर मरीन फिशरीज इन जनरल वाटर बॉडी का यूज होकर हम इकोनॉमी के फॉर एग्जांपल फिशरीज होता है तो डेयरी फिशरी सेक्टर जो है उसको वो सारे जो बॉडीज हैं जो फिशरीज बॉडीज हैं जो वाटर से कनेक्टेड हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को हम ब्लू इकोनॉमी के अंदर रखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय गवर्नमेंट जो है वो जो सत्ता में होते हैं, जो लोग भी जो पार्टी सत्ता में होती है, फिर भी लोगों को देना शुरू कर देती है। डिलीवरी जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो चूंकि आप इकोनॉमिक्स की आपने पढ़ाई करी है,
क्यों इसका विरोध होता है? इकोनॉमिस्ट इस चीज का विरोध करते हैं, गवर्नमेंट के इस स्टेप का विरोध करते हैं कि ये फ्रीबीज कल्चर जो है ठीक नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? सर मुख्य कारण जो मुझे लगता है, जो इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं, वो डिपेंडेंसी पर बात करते हैं। इस रेवरी कल्चर से उन समाज पर एक डिपेंडेंसी कल्चर आ जाता है, जिससे वे उन रेवरी कल्चर मतलब जो फ्रीबीज उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वो उस पर ही निर्भर हो जाते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम के लिए। एंड उनकी क्षमता जो सोचने की होती है, वो किस तरीके के लीडर चाहते हैं, उन्हें क्या एक्चुअल में मदद है, वो अपना ग्रोथ इंडिपेंडेंट खो बैठते हैं। सो मेरे लिए सर ये मुख्य है। नहीं, ये बात साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट की बात हम कर रहे हैं कि वो क्यों विरोध करते हैं? सर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट से ये एक तरीके का सब्सिडी जो हमारे इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं टर्म्स, तो सर सब्सिडी से इनकम नहीं आ पाती है गवर्नमेंट के पास। एक तरीके ऐसा मनी है जो सरकार की तरफ से चली जा रही है, इसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण एज कम्पेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे रोड्स पे, हॉस्पिटल्स पे, उससे उन्हें रिटर्न मिलती है। सर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट से ये है। तो सोशल जस्टिस भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप सोशोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट है, क्या मतलब होता है सोशल जस्टिस? सर मेरे लिए सोशल जस्टिस ये होगी कि पूरे समाज को एक नज़रिए से देखना, किसी को भी भेदभाव ना करना, उन्हें सारे तरीके के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपना ग्रोथ अपने तरीके से कर पाए। पॉलिटिकल साइंस भी आपने पढ़ाई करी है, तो इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है? सर बेसिक डिफरेंस जो मुझे पता है, इक्वालिटी होता है सबको एक तरीके से जजमेंट करना, चाहे कोई भी किसी भी जेंडर का, कास्ट का, रिलीजन का हो, उन्हें हम एक तरीके से जज करेंगे। पर दूसरी तरफ इक्विटी यह कॉन्सेप्ट बताता है कि जो एक समान के लोग हैं, इक्वल्स पीपल हैं, लाइक पीपल, उन्हें लाइक तरीके से ट्रीट किया जाए, जो अनलाइक है उन्हें अनलाइक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पिछड़ा जाति से, पिछड़े वर्ग से आता है, हमें उन्हें अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि वह एक समांतर पेडिस्टल, जो इक्वल पेडिस्टल में हम बात करते हैं, उस पर आ सके, ताकि उनका ग्रोथ हो। अब आपकी बात को अगर मान ले तो चूंकि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, तीनों से कहीं ना कहीं ये चीज जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं तीनों से कनेक्टेड है। तो फ्रीबीज के बारे में जो आपने कहा, अब क्या उसको अफर्मेटिव एक्शन नहीं माना जा सकता है? जो किसान है, कर्ज के तले दबे हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है, किसान अक्सर आत्महत्या करते रहते हैं। अगर सरकार लोन माफ कर रही है या उनके लिए फ्री बिजली 200 यूनिट या कुछ भी 125 यूनिट जैसे बिहार में है दे रही है, या बिजली का पर यूनिट रेट जो है वो कम कर दे रही है, तो इसको अफर्मेटिव एक्शन नहीं कहा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल कहा जा सकता है, पर एज इकोनॉमिस्ट या एज अ लीडर ऑफ दिस, और आपके अकॉर्डिंग ये इक्विटी है या इक्वलिटी है? सर इसे तो इक्विटी कहेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ ही वर्ग को मिल रहा है, सभी लोगों को नहीं, तो इसे इक्विटी कहा जाएगा। और मेरे ख्याल से इसे अफर्मेटिव एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कह सकते हैं, जब तक आप उन्हें इंसेंटिवाइज ना करें कि वो इस वैल्यू के लिए एक्चुअली हकदार हैं, या अगर उन्हें ये सब्सिडीज चाहिए या ये कोई पैसे चाहिए, उनके लिए वो कुछ और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स को एमएसपी हम इसलिए ही देते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट देते हैं, शुगर केन पे, तो अगर वो प्रोड्यूसर, उन्हें हम इंसेंटिवाइज करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए उन्हें एमएसपी दिया जाता है। तो मेरे लिए ये अफर्मेटिव एक्शन एक हद तक है। सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी दोनों में कोई अंतर है क्या? सर मेरे लिए अंतर यह होगा कि जस्टिस में हम उनके उन एंगल्स को देखते हैं जहाँ पे सॉरी अभी आ गया, सॉरी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इसके बारे में बता पाएंगे कुछ? जी सर, 1973 में केशवनंद भारती केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया था, जिसमें हमारे जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसने उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जिसको हम लोग कभी भी अमेंड नहीं किया, जो लेजिस्लेचर वो कभी अमेंड नहीं कर सकती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही सारे कानून को चलना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए।
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कुछ प्रोविजंस के बारे में आप बता पाएं जो जिसको अब तक माना जा चुका है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। So for example, secularism, socialism, our parliamentary system, example, etc. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से विधायिका के कार्य क्षेत्र में घुसने का अपना एक इंतजाम कर लिया है बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इसके माध्यम से। आप क्या सोचते हैं, सहमत है मेरी बात से? नहीं सर, मैं सहमत तो नहीं हूँगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मेन उद्देश्य ही यही है कि वो उन प्रिंसिपल चीज को बचाना चाहता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफाइन किया था, डिसाइड किया था, जिस आधार पर आज भारत के जो हमारा देश है जिस नींव पे खड़ी है उसको ही डिफाइन, उसी को बचाने के लिए जुडिशरी ने ये स्टेप लिया है। एंड आई बिलीव कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो जैसा आप बता रहे हैं वैसा ऐसा नहीं है एंड इट इज अ मस्ट फॉर आवर कंट्री। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच, इस दोनों में क्या अंतर है? सर जुडिशियल रिव्यू इसी केस से निकला था 1973 के केस से, जहाँ पे जुडिशरी ऐसे केसेस पहले नहीं था सर था बट ऐसा फॉर्मल वे में नहीं कहा गया था बिफोर 1973, जहाँ पे आर्टिकल 32 क्या है? सर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रखता है, ताकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अब्रेज हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रीच कर सकते हैं। I think we are good.